ہے میں اس وقت یونٹ 1 لیول پر آیا ہوں. مطلب یونٹ 1 ہو گیا مطلب جو گرام پنچایت. تو ہر ایک یونٹ میں اپنی اپنی جورسڈکشن ہوتا ہے, اپنے اپنے منڈیٹڈ پاورس ہوتے ہیں. اسی طرح جو گرام پنچایت, میں نے ان کے ساتھ بات بھی کی, دے گاٹ کنونسڈ. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو ایک سیلنگ دی جاتی ہے فنڈس کی, اگر اس سیلنگ میں کہیں پہ پرابلم ہے تو وہ آپ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں, ہم دیکھ لیں. اگر اس سیلنگ سے باہر, مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں گا فیاض صاحب, اگر کوئی پروجیکٹ ہوگا جو بڑا پروجیکٹ ہے جو گرام پنچایت سے جا کے اگلے سٹیپ پر جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی ان کا ایک سسٹم ہے, بلاک سمیتی جس کو بولتے ہیں, وہ وہاں پر ان کو اٹھانا ہے, اور ہر ایک سرپنچ صاحب اس کے ممبر ہیں. اسی طرح بلاک سے اوپر جا کے پھر ضلع والی سمیتی ہے. تو میں اپنی اس جو گرام پنچایت کی لیول کی ہے, جو ان کی سیلنگ ہے, اس میں بالکل ان کو فنڈس آئے ہیں, ان کا پلان ہوا ہے. اور اب چونکہ یہ ایک مطلب ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اگر انہوں نے کسی پلان پچھلے سال کے پلان میں فار ایگزامپل 10 ایکٹیویٹی آئیڈینٹیفائی کی ہوں گی, تو 10 میں تو ایک ہی وقت وہ مطلب کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی, چل رہی ہے. تو اگر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو ان میں شکایت ہے, جو آپ کی جو سیلنگ ہے, مگر سیلنگ میں کوئی پرابلم ہے, فنڈس نہیں آئے, تو نو دس واز ناٹ دیئر اینی مطلب کمپلینٹ ریگارڈنگ اٹ. دے ور مطلب سیٹسفائڈ کہ ہاں جو اپنے ہاں ان کی ڈیمانڈس ہیں, وہ میں بھی ہوا. ہمارا کام ہی ہے کہ ان ڈیمانڈس کو ان کنسرنڈ اتھارٹیز, کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے تک ریکمنڈ کرنا. وہ ہم کر رہے ہیں, وہ اپنے رپورٹ میں ہم لکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایک اہم چیز دیکھی, یہاں پر واٹر سپلائی اسکیم ہے, وہ بالکل تیار ہے. مطلب دیٹ از اونلی ٹو پٹ آن, اس کو صرف کک آن کرنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے اس واٹر سپلائی اسکیم کو. اب اس میں کچھ فارملٹی ایک ہے, کسی جگہ وہ پھنس گئی ہے, کچھ فارملٹی جو وہ مطلب لینڈ اونر ہے جس نے وہ زمین پرووائڈ کی ہے, اس کا کچھ کمپنسیشن کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ان کو کہ میں آپ کا چونکہ اب 3 پنچایتوں پر مشتمل ہے, یہاں پر ایک ڈیمانڈ ایسی ہے جو کمبائن ہے تینوں کی. ایز وزٹنگ آفیسر میں اس کو آگے لے جاؤں گا, اور آگے کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں اوور آل میں کہوں گا اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مطلب میں نے کل دیکھا, میں پہاڑی تک مطلب بلیک ٹاپڈ روڈز ہیں, مطلب چلو پانی بالکل اسکیم تیار ہے, اسٹارٹ کرنی ہے. ابھی ہماری ہی طرف سے یا ہم لوکل پاپولیشن کی طرف سے اگر کچھ ہے تھوڑی بہت اس میں کچھ تھوڑی پرابلم ہے, دیٹ ول گیٹ ریزالوڈ. ملک صاحب ایک بات آخر میں چونکہ آپ بھی اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں, میں ابھی اس علاقے میں آیا, ہائما علاقے میں, تو محکمہ زراعت جو ہے ابھی ایک ہماری ایک فصل ہوتی ہے دان کی فصل, اسی پہ ہمارا سب منحصر ہے. تو ایک بیداری لوگوں میں یا کسانوں میں یہ کیوں نہیں لائی گئی کہ ہم دوسری فصل کا استعمال کر سکیں. ساری جو ہماری آبی اول زمین ہے وہ پڑی ہے, اس کے لیے محکمہ زراعت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ اور وہ یہاں پہ ہونے چاہیے؟ فیاض صاحب, جب میں کل یہاں آیا تو فارچونیٹلی ایگریکلچر کا جو ہمارے اسسٹنٹ صاحب ہے, ہی از ویری مچ ہیئر پریزنٹ. ہم نے پہلے وہی ایکٹیویٹی اٹھائی, اور میں بڑا مطلب مطمئن ہوا جب میں نے سوئل ٹیسٹڈ سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کی. مطلب سوئل ٹیسٹڈ سرٹیفکیٹ کچھ مطلب ان کا وہ کچھ بلاسٹ ہوا تھا رائس میں, اور میں نے خود وہ سرٹیفکیٹ پڑھی. ایمنسٹی اسکیم دی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ چونکہ اپنا میں بھول گیا تھا, جو حال ہی میں ہمارے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ایمنسٹی اسکیم ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے ہم نے وہ لانچ کی. تو جس اسکیم کے مادھیم سے جو بھی بقایا جات ہیں ڈومیسٹک کنزیومروں کے 31 مارچ 2022 تک, تو اس میں سرکار نے جو بھی ان کے انٹرسٹ ایکریوڈ انٹرسٹ ہیں, چارجڈ انٹرسٹ ہیں, وہ معاف کر دیے. اور دوسری سہولیت یہ رکھی کہ جو بقایا جات ہیں تو وہ 12 قسطوں میں ادا کریں. تو میں اس میں بھی میں نے یہاں پر اویئرنیس دیکھی لوگوں میں, اور جس کو جو اویئر نہیں تھا ان کو ہم نے اویئرنیس کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پازیٹیو پایا, لوگ تیار ہیں اویل کرنے, آدھے کر رہے ہیں, آدھے تیار ہو گئے. کیونکہ میں نے ان کو اس کے علاوہ بھی پاور کی جو امپورٹنس ہے ہمارے اس پاور سیکٹر کی, میں نے ان کو بتائی کہ جس طرح جتنا ہم لاسز کم کریں اتنا ہماری جو پاور اویلیبلٹی بڑھ جائے گی, اور ہمارا جو اکوپمنٹ ہمارا سیف رہے گا. تو اس کے علاوہ بھی میں نے ان کو مطلب آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے
मतलब कितना इसमें इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कंडक्टर्स हो, चाहे पोल हो, वो चल भी रहा है और बहुत काम हुआ भी है। तो उसमें भी हमने अपने आप को मुतमईन पाया और लोगों को भी अवेयर किया कि पावर एक ऐसी कमोडिटी है, पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको जुडिशियसली यूज़ करें, खुसूसन इन विंटर के इन महीनों में, सर्दियों के महीनों में, ताकि इसकी सप्लाई अच्छी तरीके से जारी रहे। मलिक साहब ये बताना चाहेंगे, बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम हो गए हैं, लोगों की शिकायत है, ये हर जगह पे, ये कुपवाड़ा की नहीं, लोगों की शिकायत है कि जो 3 प्रोग्राम हुए उन पे जो काम जो लोग बोलते हैं उन पे तो ग्राम सभा और जनरल पब्लिक के साथ हमने मीटिंग की, उनके मसाइल सुने हमने और उनकी डिमांड्स देखी। तो जो फिर इनको अपने प्लान में जो इनको मतलब वो प्लान में हाईलाइट करने हैं, वो ये मतलब उन्होंने किए। तो आज का जो और इसका एक और थीम था बैक टू विलेज 4 का, दो चीज़ों पर स्ट्रेस था। एक स्ट्रेस है जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ के यूथ हैं, तो जो क्वालिफाइड यूथ है वो हमने आइडेंटिफाई किए मतलब एज़ पर इंस्ट्रक्शंस कि जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व किया जाएगा, या एक और ग्रुप हमें बनाना है जिनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में मतलब टूरिज़्म सेक्टर पर ट्रस्ट दिया गया है, उसके बारे में भी हमने उनको अवेयर किया और वो लिस्ट भी बनाई। तो इसके अलावा जो इनका मतलब जो पिछले 2 सालों से या पिछले प्रोग्राम से करते आ रहे हैं, स्वच्छ विलेज जिसको कहते हैं, जो स्वच्छ भारत का एक हिस्सा है, उसमें भी हमने इनका रिव्यू किया और हम मुतमईन हैं कि ये अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं। तो जो दूसरा पार्ट इसका था, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल फोक इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इन कल्चरल प्रोग्राम्स, इन सोशल प्रोग्राम्स, तो उसमें भी हमने इनका रिव्यू किया और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुतमईन हैं। तो और एक और थीम थी आज की, नशा मुक्त भारत का एक हिस्सा, नशा मुक्त गाँव। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हुआ जो मैंने पूरी सर्वे की, यहाँ पर कोई एडिक्टेड नहीं पाया हमने इनके रिपोर्ट के मुताबिक। इस तरह भी मैंने लोगों से बात की तो मतलब कोई हमने नहीं देखा कि कोई मतलब नशे का मतलब शिकार है यहाँ पे। तो दूसरा था एक अहम मुद्दा जो इस बैक टू विलेज 4 का एक थीम है, मतलब एंटी करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस, और वो वीक आज चल रहा है। तो उसमें भी मैंने इनको अवेयर किया कि जो करप्शन है ये हर एक बुराई की मतलब बिद्दत की जड़ है, इससे उखाड़ कर फेंक दें और अपने हुकूक का, अपने हक का खुद आप इसमें इसकी रखवाली करें, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और अपनी लेवल पर, अपनी इंस्टीट्यूशन में इसको, और जो कंसर्नड इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पर रिजॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़मीर से इंसाफ करें और इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। तो ग्राम सभा और जनरल पब्लिक के साथ हमने मीटिंग की, उनके मसाइल सुने हमने और उनकी डिमांड्स देखी। तो जो फिर इनको अपने प्लान में जो इनको मतलब वो प्लान में हाईलाइट करने हैं, वो ये मतलब उन्होंने किए। तो आज का जो और इसका एक और थीम था बैक टू विलेज 4 का, दो चीज़ों पर स्ट्रेस था। एक स्ट्रेस है जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ के यूथ हैं, तो जो क्वालिफाइड यूथ है वो हमने आइडेंटिफाई किए मतलब एज़ पर इंस्ट्रक्शंस कि जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्वॉल्व किया जाएगा, या एक और ग्रुप हमें बनाना है जिनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में मतलब टूरिज़्म सेक्टर पर ट्रस्ट दिया गया है, उसके बारे में भी हमने उनको अवेयर किया और वो लिस्ट भी बनाई। तो इसके अलावा जो इनका मतलब जो पिछले 2 सालों से या पिछले प्रोग्राम से करते आ रहे हैं, स्वच्छ विलेज जिसको कहते हैं, जो स्वच्छ भारत का एक हिस्सा है, उसमें भी हमने इनका रिव्यू किया और हम मुतमईन हैं कि ये अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं। तो जो दूसरा पार्ट इसका था, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल फोक इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इन कल्चरल प्रोग्राम्स, इन सोशल प्रोग्राम्स, तो उसमें भी हमने इनका रिव्यू किया और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुतमईन हैं। तो और एक और थीम थी आज की, नशा मुक्त भारत का एक हिस्सा, नशा मुक्त गाँव। तो
अल्लाह का शुक्र है मैं खुश हुआ जो मैंने पूरी सर्वे की, यहाँ पर कोई एडिक्टेड नहीं पाया हमने इनके रिपोर्ट के मुताबिक। इस तरह भी मैंने लोगों से बात की तो मतलब कोई हमने नहीं देखा कि कोई मतलब नशे का मतलब शिकार है यहाँ पे। तो दूसरा था एक अहम मुद्दा जो इस बैक टू विलेज 4 का की थीम है, मतलब एंटी करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस, और वो वीक आज चल रहा है। तो उसमें भी मैंने इनको अवेयर किया कि जो करप्शन है ये हर एक बुराई की मतलब बिद्दत की जड़ है, इससे उखाड़ कर फेंक दें और अपने हुकूक का, अपने हक का खुद आप इसमें इसकी रखवाली करें, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और अपनी लेवल पर अपनी इंस्टीट्यूशन में इसको, और जो कंसर्नड इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पर रिजॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़मीर से इंसाफ करें और इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। एमनेस्टी स्कीम दी थी, आपको लगता है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? चूँकि अपना मैं भूल गया था, जो हाल ही में हमारे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हमने वो लॉन्च की। तो जिस स्कीम के माध्यम से जो भी बकाया जात हैं डोमेस्टिक कंज्यूमरों के 31 मार्च 2022 तक, तो उसमें सरकार ने जो भी इनके इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है, चार्जेड इंटरेस्ट है, वो माफ़ कर दिए। और दूसरी सहूलियत ये रखी कि जो फिर जो बकाया जात हैं तो वो 12 किस्तों में अदा करें। तो मैं उसमें भी मैंने यहाँ पर अवेयरनेस देखी लोगों में, और जिसको जो अवेयर नहीं था उनको हमने अवेयरनेस की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पॉजिटिव पाया, लोग तैयार हैं अवेयर करने, आधे कर रहे हैं, आधे तैयार हो गए। क्योंकि मैंने इनको उसके अलावा भी पावर की जो इम्पोर्टेंस है हमारे इस पावर सेक्टर की, मैंने इनको बताई कि जिस तरह जितना हम लॉसेस कम करें उतना हमारी जो पावर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो हमारा जो इक्विपमेंट हमारा सेफ रहेगा। तो उसके अलावा भी मैंने इनको मतलब आइडेंटिफाई किया कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मतलब कितना इसमें इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कंडक्टर्स हो, चाहे पोल हो, वो चल भी रहा है और बहुत काम हुआ भी है। तो उसमें भी हमने पाया और लोगों को भी अवेयर किया कि पावर एक ऐसी कमोडिटी है, पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको जुडिशियसली यूज़ करें, खुसूसन इन विंटर के इन महीनों में, सर्दियों के महीनों में, ताकि इसकी सप्लाई अच्छी तरीके से जारी रहे। मलिक साहब ये बताना चाहेंगे, बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम हो गए हैं, लोगों की शिकायत है, ये हर जगह पे, ये कुपवाड़ा की नहीं, लोगों की शिकायत है कि जो 3 प्रोग्राम हुए उन पे जो काम जो लोग बोलते हैं उन पे 3 पंचायतों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक डिमांड ऐसी है जो कंबाइन है तीनों की, एज विजिटिंग ऑफिसर मैं उसको आगे ले जाऊंगा, और आगे की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मतलब मैंने कल देखा, मैं पहाड़ी तक मतलब ब्लैक टॉप्ड रोड्स हैं, मतलब चलो पानी बिल्कुल स्कीम तैयार है, स्टार्ट करनी है अभी हमारी ही तरफ से, या हम लोकल पॉपुलेशन की तरफ से अगर कुछ है थोड़ी बहुत उसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम है, दैट विल गेट रिजॉल्व। मलिक साहब एक बात आखिर में, मैं चूँकि आप भी इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अभी इस इलाके में आया, हायमा इलाके में, तो महकमे ज़राअत जो है, अभी एक हमारी एक फसल होती है धान की फसल, उसी पे हमारा सब मैसेज है। तो एक बेदारी लोगों में या किसानों में ये क्यों नहीं लाई गई कि हम दूसरी फसल का इस्तेमाल कर सकें? सारी जो हमारी आबी अवल ज़मीन है वो पड़ी है, उसके लिए महकमे ज़राअत कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि लोगों की ये डिमांड और वो यहाँ पे होनी चाहिए? फयाज साहब, जब मैं कल यहाँ आया तो फॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर का जो हमारे असिस्टेंट साहब है, ही इज़ वेरी मच हियर प्रेजेंट। हमने पहले वही एक्टिविटी उठाई, और मैं बड़ा मतलब मुतमईन हुआ जब मैंने सॉयल टेस्टेड सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट की कल। मतलब सॉयल टेस्टेड सर्टिफिकेट कुछ मतलब इनका वो कुछ ब्लास्ट हुआ था राइस में, और मैंने खुद वो सर्टिफिकेट पढ़ी है। मैं इस वक्त यूनिट 1 लेवल पर आया, मतलब यूनिट 1 हो गया मतलब जो ग्राम पंचायत, तो हर एक यूनिट में अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होता है, अपने अपने मैंडेटेड पावर्स होते हैं। इसी तरह जो ग्राम पंचायत, मैंने इनके साथ बात भी की, दे गॉट कन्विंस्ड। मैंने उनको बताया कि आपको एक सीलिंग दी जाती है फंड्स की, अगर उस सीलिंग में कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे पॉइंट आउट करें, हम देख लें। अगर उस सीलिंग से बाहर, मतलब मैं आपको एक मिसाल दूंगा फयाज साहब, अगर कोई प्रोजेक्ट होगा जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो ग्राम पंचायत से जाके अगले स्टेप पर जाती है, तो उसके लिए भी इनका एक सिस्टम है
ब्लॉक समिति जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर इनको उठाना है और हर एक सरपंच साहिब उसके मेंबर हैं। इसी तरह ब्लॉक से ऊपर जाके फिर जिला वाली समिति है। तो मैं अपनी इस जो ग्राम पंचायत की लेवल की है, जो इनकी सीलिंग है, उसमें बिल्कुल इनको फंड्स आए हैं, उनका प्लान हुआ है। और अब चूंकि ये एक मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर इन्होंने किसी प्लान पिछले साल के प्लान में फॉर एग्जांपल 10 एक्टिविटी आइडेंटिफाई की होंगी, तो 10 में तो एक ही वक्त वो मतलब कंप्लीट नहीं हो जाएगी, चल रही है। तो अगर मैंने इनको कहा कि अगर आपको इनमें शिकायत है, जो आपकी जो सीलिंग है, मगर सीलिंग में कोई प्रॉब्लम है, फंड्स नहीं आए, तो नो दिस वाज नॉट देयर एनी मतलब कंप्लेंट रिगार्डिंग इट। दे वर मतलब सेटिस्फाइड कि हाँ जो आपने इनकी डिमांड्स हैं वो मैं भी हुआ। हमारा काम ही है कि उन डिमांड्स को उन कंसर्न अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के तक रिकमेंड करना, वो हम कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अहम चीज़ देखी, यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम है, वो बिल्कुल तैयार है, मतलब दैट इज़ ओनली टू पुट ऑन, उसको सिर्फ टिक ऑन करना है, स्टार्ट करना है उस वाटर सप्लाई स्कीम को। अब उसमें कुछ फॉर्मेलिटी एक है, किसी जगह वो फंस गई है, कुछ फॉर्मेलिटी जो वो मतलब लैंड ओनर है जिसने वो ज़मीन प्रोवाइड की है, उसका कुछ कंपनसेशन का मसला है। तो मैंने कहा इनको कि मैं आपका चूँकि अब बैक टू विलेज 4 का सिलसिला जारी है और कुपवाड़ा में भी ये प्रोग्राम शदो में से जारी है। इस वक्त मैं हूँ ज़िले कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके जिसे हायमा हलमतपुरा कहते हैं। यहाँ की पंचायत बी जो है, वहाँ पे इस वक्त बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पे जो जिनकी सरबराही में ये प्रोग्राम चल रहा है, वो है डायरेक्टर फाइनेंस JK PDD मोहम्मद सुल्तान मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मलिक साहब जी, आप पिछले 2 दिन उसमें इस दूर दराज इलाके में। जी फैज़ साहब, पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए और आपने भी इनकी कार्रवाई देखी। जैसा कि आपको पता है कि बैक टू विलेज ये पिछले 3 सालों से चल रहा है, मतलब गाँव वापस जाना। जी एक्चुअली बैक टू विलेज जो है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका जो टायर 1 है, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं जी, तो ग्राम पंचायत जो बेसिक यूनिट है डेमोक्रेसी सेटअप का और गवर्नेंस सेटअप का, तो इसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं गवर्नेंस एट डोर सेटअप। मतलब जो डेमोक्रेसी का बेसिक यूनिट है, मतलब पंचायत ग्राम पंचायत जिसमें पंच साहिबान होते हैं और उनके सरबरा एक सरपंच होते हैं, और इनको जो अपने गांव की डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी जो रिलेटेड मसाइल होते हैं, इक़्तिसादी मसाइल होते हैं, सकाफ़ती मसाइल होते हैं और इनके कल्चरल मसाइल जो होते हैं, तो इनको ये अपनी प्लानिंग के तहत चलाते हैं, खुद पास करते हैं। तो इनको ही सरकार ने एक किस्म, जो मैं समझ रहा हूँ, बैक टू विलेज जाके इसका रिव्यू करें, इनके मसाइल देखें, इनके प्रोग्राम्स क्या हैं आगे। तो बैक टू विलेज 4 इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें मुझे ये पंचायत दी गई है, क्योंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला भी हूँ। तो मैं कल यहाँ आया हूँ, तो कल पहले दिन अपने जो प्रोग्राम का शेड्यूल था उसके मुताबिक जो हमें कल एक्टिविटीज़ या इंस्पेक्शंस करने थे, हम जो इन्होंने पिछले काम किए हैं उनका इंस्पेक्शन हमने किया। वहाँ पे गए हम, जैसे